مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدائے قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی میں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم آج تیرے اس مقدس دن میں اکٹھے ہو سکیں اور بطور کلیسیا ایک خاندان کی حیثیت سے تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند، ہم اس جگہ کے لیے شکر کرتے ہیں جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ تیری عبادت کا آغاز کرتے ہوئے خدائے پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدائے پاک روح تو ہمیں چھو اور مسا کر، معمور کر، اپنی آگ سے بھر دے، اپنی آگ سے دھو کر پاک کر دے تاکہ ہم تیری حضوری میں ٹھہرنے کے قابل ہو سکیں۔ خداوند، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمیں چھو اور خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ خداوند، ساری عبادت کے دوران تیری رہنمائی ہمارے ساتھ رہے۔ خداوند، جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کے لیے بھی پاک روح کی معموری مانگتا ہوں۔ ہر ایک کو چھو خداوند، پاک روح سے معمور کر تاکہ آج کی عبادت ہر ایک کے لیے جو یہاں پر موجود ہے یا آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، سبھی کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند، آج اس عبادت میں جتنے لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ شامل ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان، مضبوطی اور معجزات پائیں۔ خداوند، تو ہماری حفاظت کر، بیماریوں کے حملے سے، شیطان کے حملے سے محفوظ رکھ۔ دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، ہمارے ذہن اور خیال یسوع کے نام میں تیری طرف لگ جائیں۔ خداوند، آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں تو اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 9 گائیں گے۔ زبور نمبر 9، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ زبور نمبر 9، دوجا حصہ، پہلا وزن۔
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। इस दुआ में शाइज हमारी रहनुमाई करेंगे। भाई शाइज इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो इस वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल होंगे और रहनुमाई करते हुए ख़ास तौर पर एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये अदारा दिया है और इस अदारे में हम आज़ादी के साथ रह सकते हैं, अपने ईमान का इकरार आज़ादी के साथ कर सकते हैं, यहाँ पर इबादत के लिए जमा हो सकते हैं। दुआ करेंगे खुदावंद इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे में काम करने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ यहाँ पर काम करता है, उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो और हमारा मुल्क बहाल हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और अपने मुल्क में भी अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम करे और पूरी दुनिया में भी अमन और सलामती को कायम करे, जंगें ख़त्म हो सकें। और ख़ास तौर पर तुर्की और शाम में और जो और ममालिक में ज़ल्ज़ला आया है, खुदावंद से दुआ करेंगे खुदावंद ममालिक पर रहम भी करे और ममालिक के लोगों के लिए बहाली के लिए भी इंतज़ाम हो सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई शायद इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम सब अपने सिरों को खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकाएं और खुदावंद से इल्तिजा करें। कादिर मुतलक अब्दी और वफादार खुदा, तू जो हमेशा से हमेशा तक जीता और सल्तनत करता है, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में अता किया कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर बाहम मिलकर तेरी पाक हुजूरी में आए, तुझे सजदा करें, तेरी इबादत करें। कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमें बरकत देता है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है और हमें अपनी बारगाह में आने का बार बार मौका अता करता है। इस वक्त कादिर मुतलक खुदा बड़े ईमान यकीन भरोसे के साथ तेरी हुजूरी में है और तेरे से इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी दुआओं को हकीक ना जान बल्कि अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक जलाली और मुकद्दस नाम के वसीले से हमारी दुआओं को सुन और उसे कबूल कर। कादिर मुतलक खुदा, बिलखुसूस तेरे से आज इल्तिजा करते हैं अपने इस अदारे के लिए, एफसी कॉलेज के लिए जो तूने हमें अता किया है, जहां पर कादिर मुतलक खुदा बड़ी आज़ादी के साथ तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तेरे घर में आके तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तू हमारी इबादत के वसीले से जो हम तेरी करते हैं तू हमें बरकतों से मालामाल करता है। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, यहाँ पर मौजूद तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स के लिए, तुलबा तलबात के लिए जो कादिर मुतलक खुदा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं या इस अदारे को
सर्व कर रहे हैं। कादर मुतलक खुदा उन तमाम लोगों के लिए तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। तू इस अदारे को कायम और दायम रखना ताकि ये अदारा इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करके तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। कादर मुतलक खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे अमन, सुलह और सलामती की दुआ करते हैं। यहाँ पर कादर मुतलक खुदा जो भी सियासी इस्तेकाम है जिसकी वजह से हमारा मुल्क और यहाँ पर तमाम शहरी परेशान हैं, वो रोजगार की वजह से हो, रुपए पैसे की वजह से हो या अगर किसी भी चीज की वजह से हो, तो कादर मुतलक खुदा उसमें से तमाम शहरियों को और हमारे मुल्क पाकिस्तान को निकालना और कादर मुतलक खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए तुझसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि कादर मुतलक खुदा तू हमारे मुल्क पाकिस्तान को और कादर मुतलक खुदा इसकी आला हुकूमतों को, तमाम कादर मुतलक खुदा अदारों को तो बरकत देना और उनको अकल समझ बूझ अता फरमाना ताकि वो बेहतर तरीके से इस मुल्क को चला सकें। कादर मुतलक खुदा खुसूसी तौर पे तेरे से इल्तिजा करता हूँ शाम और तुर्की के लिए कि जहां पर कादर मुतलक खुदा जल्जला आया है और बहुत से लोग उससे मुतासर हुए हैं, तो अपना कभी हाथ बढ़ाकर उन तमाम लोगों को बरकत देना और इस तमाम साने से कादर मुतलक खुदा उनको निकालना। जो लोग तुझ में सो गए हैं उन तमाम लोगों के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ कि कादर मुतलक खुदा तू उनको अपने अब्दी अवानों में जगह अता फरमाना और तमाम मुतासरीन को तो कादर मुतलक खुदा जो बीमार हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, तो उनको शिफा अता फरमाना। आज की इस इबादत में हमारे साथ होना, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई और हदायत करे और कादर मुतलक खुदा तेरे पाक रूह की रहनुमाई और हदायत में रहते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगता हूं तेरे इकलौते बेटे अपने खुदा मसीह के पाक जलाली मुकद्दस और अलकाते नाम के वसीले से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 121 गाएंगे। ज़बूर 121 अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा मदद लई मैं किसने पुकारा। ज़बूर नंबर 121 Psalm 121।
सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि ईमानदार जब इकट्ठे होते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं तो मोजज़ात होते हैं। हम में से हर एक के लिए मौका है कि हम अपने लिए और अपने ख़ानदान के में कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए, हमें छुए और बरकत दे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा,
हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में हम पर रहम करता है। तो अपने बेटे यीशु के वसीले से दुआओं को सुनता है, और तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु नाम के लिए जो सब नामों से आला है, और उसी के नाम में कुदरत और फतह है, और उसी के नाम से खुदावंद आज यहाँ पर हम जमा हैं, और इस ईमान के साथ मौजूद हैं कि तू जिंदा खुदावंद है जो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी तकलीफ और दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तेरा मौजज़ा मांगते हैं, तू हम में से हर एक को छू दे। खुदावंद हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं, और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद हमारा ईमान है तो उनके साथ भी मौजूद है। अपनी कुदरत से सभी को छू, हर एक बीमारी को, तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से उस पर फतह का ऐलान करते हैं, यीशु के नाम से फतह मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें छू दे और हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। तू छू और शिफा दे। हमारे घरानों में से हर किस्म की जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। खुदावंद तू छू और मौजज़ात कर। खुदावंद तू हम पर रहम कर, तू हमें छू और बरकत दे। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरखास्त किया कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, खुदावंद उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस सरोया के लिए, मिसेस शहनाज सफदर के लिए, मिसेस जीनत बरकत के लिए, मिसेस जीनत जॉर्ज के लिए, मिसेस सरोया के लिए, मिसेस लवीजा के लिए, मिसेस आसिया और मिसेस समरीन के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद मिसेस नजीर जियाई और मिसेस सर्वर के लिए दुआ करते हैं, जेरूशा के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसिफ रशीद और भाई ऑगस्टीन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू दे, तेरे छूने से सभी शिफा पाएं। हर एक कमजोरी और बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। खुदावंद हम बहन फौजिया के लिए भी दुआ करते हैं, हर एक को छू, खुदावंद उन्हें शिफा दे। सारी वीकनेस यीशु के नाम से जाती रहे, सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो हार्ट पेशेंट्स हैं यीशु के नाम से उन्हें शिफा मिले, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, सभी के लिए खुदावंद शिफा मांगते हैं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं। तूने छू खुदावंद, उन्हें औलाद की नेमत दे, तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए, तेरे बेटे यीशु के नाम से वो बरकत पाए। तू छू और मौजज़ा कर। खुदावंद हम में से हर एक के साथ और में बीमारियों से महफूज रख, वबाई अमराज से बचाए रख, हादसा से महफूज रख। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे। अगली दरखास्त मैंने खुद ही नहीं की, हर दफे करता हूँ कलीसिया वाले से हमेशा मैं दरखास्त करता हूँ। शकील साहब इंतजार कर रहे थे कि मैं अगला जुमला भी बोलूँगा, तो मैंने बोला नहीं, लेकिन ये हर तरह की दफा इस दफा भी समझ लें कि आप लोग साथ क्वायर के गाया करें, क्योंकि ये जो गीत हैं ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये खुदावंद की प्रस्तुत और हमदो सना है। ये क्वायर परफॉर्म नहीं कर रही, ये आप लोगों के साथ हमदो सना कर रही है, इसलिए इसमें जरूर शामिल हो साथ। अच्छा, आज का जो गीत है क्योंकि पादरी साहब ने अनाउंस किया है, ये हमने अभी नया लिखा है, मैंने और फोरम ने मिलकर इसको लिखा है, तो आज हम ये गाएंगे। आप गौर से ज़रा सुनिएगा, फिर हम इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब बहुत खूबसूरत गीत है, शुक्रगुजारी के तौर पर है, तो आप सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा जहाँ तक हमारे साथ साथ दे सकें। थैंक यू सो मच।
बख्शदाब मैनू बरकताब तेरिया है फर्ज तेरा मुहब्बता तेरिया छड़ गाना मैनू फड़े ले दबा छड़ गाना मैनू फड़े ले दबा जब हर वेले यीशु तेरा नाम शुक्र करा उच्चा सब को रखा तेरा माफ करदा तू यो सब काम मेरा सोने रब्बा शक्तियां तेरिया कभी डिगने ना देगा नीका कभी डिगने ना देगा नीका जब बारी मेले यीशु तेरा नाम मेरे तेरा शुक्र करा उच्चा सब को रखा तेरा पूरी करदा तू यो सब मुरादा मेरिया सब जान तू ऐसे ना तेरिया पूरी करदा तू यो सब मुरादा मेरिया सब जानता तू ऐसे का तेरिया पाप धोखे कर देगा तू नवा पाप धोखे कर देगा तू नवा जब बाहर वेले यीशु तेरा नाम मेरे वेले तेरा शुक्र करा उच्चा सब को रखा तेरा मेरे वेले तेरा शुक्र करा उच्चा सब को रखा तेरा तू यो जिंदगी तू यो मेरी जान तू यो जिंदगी तू यो मेरी जान जब बाहर वेले यीशु तेरा नाम हर वेले तेरा शुक्र करा उच्चा सब को रखा तेरा उच्चा सब को रखा तेरा उच्चा सब को रखा तेरा चंद ज़रूरी इत्तलात हैं तो आपके गोशगुजार करना चाहते हैं। 22 फरवरी को राख का बुध यानी रोज़ों का आगाज़ हो रहा है, लेंट सीज़न का आगाज़ होगा और 22 फरवरी बुध की शाम को 5 बजे चैपल में राख की बुध की इबादत होगी। ये शाम 5 बजे का वक्त इसलिए रखा गया है ताकि बहुत से लोग जो ड्यूटीज़ पर होते हैं वो उस अपनी ड्यूटी से फ्री होकर इबादत में हमारे साथ शामिल हो सकें। ऐश वेडनेसडे की इबादत जो है वो 22 फरवरी को शाम 5 बजे चैपल में होगी। अपने आप को ज़रूर खुदावंद के हुज़ूरी में आने के लिए और रोज़ों के अयाम के आगाज़ के लिए
याद करें। इसके साथ ही जो शादी की पुकारे हैं भी आपके कोश गुजार करते हैं। रोहा इमानुएल, डॉक्टर इमानुएल आशिक, उम्र 22 साल, हालत खंबारी, एफसी कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी शहजाद वल्द शहबाज मसीह, उम्र 24 साल, हालत खंबारा, हरबंसपुरा लाहौर के रहने वाले के साथ 19 फरवरी 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। दानियाल वल्द फयाज मसीह, उम्र 22 साल, हालत खंबारा, एफसी कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी इकरा परवेज़, डॉक्टर परवेज़ मसीह, उम्र 25 साल, हालत खंबारी, सांदा लाहौर के रहने वाले के साथ 17 फरवरी 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। अरीज एल्बर्ट, डॉक्टर एल्बर्ट हैदर, उम्र 26 साल, हालत खंबारी, अकरम पाक गुलबर्ग 3 लाहौर की रहने वाली की शादी जीशान शरीफ वल्द शरीफ सैमुएल, उम्र 25 साल, हालत खंबारा, मदीना कॉलोनी, वाल्टन रोड, लाहौर के रहने वाले के साथ 17 फरवरी 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आज हमारे दरमियान एक नया कपल है, नया जोड़ा है। हम अभी उनको सामने बुलाएंगे और उनके लिए हम मिलकर दुआ करेंगे। और हम गुज़श्ता दिनों में एक पुकार बोलते थे, बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि ये कौन है, तो आज आपके सामने जोड़ा सूरज एंड कोमल। आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड। सूज इज फ्रॉम हंगरी और कोमल जो है वो हमारे ये सूज जो हैं ये हंगरी से हैं और कोमल हमारी बेटी जो है ये हमारे चर्च की मेंबर है, बेटी ख़ानदान की, और शी इज स्टडीइंग इन हंगरी। ये हंगरी में पढ़ रही हैं और खुदावंद ने इन दोनों को इकट्ठा किया और गुज़श्ता हफ्ते में मैंने इनका निकाह पढ़ाया और आज कल ये जाने वाले हैं वापस, तो उससे पहले आज हमारे साथ इबादत में शामिल हुए हैं। सूज कोमल, we congratulate both of you in our congregation. God bless you. और अभी हम इन दोनों की दुआ करेंगे। हम सभी अपने स्वर को झुकाएं और सभी मिलकर इस वक्त सूज के लिए और कोमल की दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा और रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं सूज के लिए और कोमल के लिए। Lord, you have joined both of them together in holy relationship, in holy matrimony. Lord, we ask your blessing, your anointing for both of them. Bless them both and give every blessing to both of them. As a family, they enjoy your presence among both of them. And खुदावन, हम इन दोनों को जब ये वापस जाते हैं तेरी हिफाजत में देते हैं। दोनों को संभाल और हिफाजत कर। कोमल और सूज के वसीले से खुदावन यीशु मसीह की गवाही हो। Lord, we commit both of them in your mighty hand. Bless them and use them for your glory in their whole life. And make them, join them together for their entire life. And make them faithful to each other.
खुदा उनके साथ और हिफाजत कर, उनके घरानों की हिफाजत कर। सूज की वालिदा के लिए, उसकी बहन के लिए दुआ करते हैं, सितासिन के खानदान की दुआ करते हैं, कोमल के खानदान की दुआ करते हैं। दोनों खानदानों को खुदा की बरकत दे और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बना। We ask in the name of Jesus. Amen. खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूम में गीत गाएंगे। गीत नंबर 338 338 रुआ। हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे खुद को, और इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुन सकें। गीत नंबर 338 338। Hallelujah.
रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। The Gospel of Matthew, chapter 5, verses 27 to 30। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस के हिस्से की तलावत करने में हमारे रहनुमाई डेंजल प्रवेश करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 27वीं आयत से 30वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। खुदा उनके पाक कलम का पढ़ा और सुना चला हम सब के लिए भाई से बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाक़िस है। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं ताकि तू हमें हिकमत दे और हमारे जहनों को तनवीर बख्श, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को समझ सकें और उससे बरकत पा सकें। खुदावंद तू हमारे दिलों को तैयार कर, हमारे दिलों को नरम कर, ताकि तेरा कलाम हमारे लिए तब्दीली और बरकत का बायस हो। यीशु के नाम से आमीन। हम पहाड़ी बाज में से सीख रहे हैं और इस दफ़ा जब हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया तो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि पहाड़ी बाज का ये हिस्सा जो 5वें बाब की 17वीं आयत से शुरू होता है, ये हमें खुदा की बादशाही में जो रास्तबाजी है उसके बारे में बताता है। Righteousness in the kingdom of God, इसको हम देख रहे हैं और पूरे पहाड़ी बाज में हम देखेंगे कि खुदा इंसानों से कैसी रास्तबाजी चाहता है। एक तरफ हमने देखा कि शरीयत है, लॉ जो कि तहरीरी सूरत में यहूदियों के पास मौजूद था, और उसके साथ साथ जुबानी शरीयत और लॉ जो है वो भी वहां पर मौजूद था, जो फकीह और फरीसी यहूदियों को सिखाते थे और फरीसी उस पर अमल भी करते थे और अमल करके दिखाते थे कि किस तरह से शरीयत पर अमल किया जाए। लेकिन 20वीं आयत में यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। यानी यीशु की जो डिमांड है, यीशु जो लोगों से डिमांड कर रहा है, चाहता है कि उसके जो लोग हैं उनकी रास्तबाजी कैसी हो, तो वो 20वीं आयत में नजर आती है कि इट शैल एक्सीड, ये ज्यादा होगी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से। हालांकि फरीसी जो थे वो बड़े कठोर और पूरे तौर पर शरीयत को पूरा करते थे। स्टिल जीसस रिक्वायर्स the righteousness which shall exceed them the law of Pharisees and scribes, कि उससे भी ज्यादा हो जो कि यहूदी उस वक्त अमल करते थे और जिसको वो बड़ा अहम समझते थे। और उसमें आज
جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ اتوار بھی آپ سے قاضی صاحب نے ایک سوال کیا، اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ کون سا حکم ہے 10 احکام میں سے؟ تو زنا نہ کرنا، چلا تو لاسٹ ٹائم تھا، یہ 7واں ہے، یہ 7واں حکم ہے، تو زنا نہ کرنا۔ پہلا تو خون نہ کرنا، اور اس کے بعد تو زنا نہ کرنا۔ اور یہاں پر بھی اسی ترتیب کے ساتھ آیا ہے کہ پہلے خون نہ کرنا کے بارے میں گزشتہ اتوار ہم نے سیکھا، اور اس اتوار میں اسی 10 احکام سے ہی جو اگلی ترتیب ہے اسی کو یہاں پر بھی شامل کیا گیا ہے کہ تو زنا نہ کرنا۔ اس میں تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا زنا نہ کرنا۔ اور پرانے عہد نامے میں اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ بڑا سختی کے ساتھ ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت لکھی گئی۔ احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ ڈیتھ پینلٹی ہے، یعنی جو زنا کرے اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ اسی طرح سے عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 4تھی آیت میں خدا نے بھی اس میں عبرانیوں کے مصنف نے بھی خدا کی عدالت ایسے لوگوں کے لیے کہی ہے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ سیکسول امورلٹی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے لیے، اور اڈلٹری میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے لیے خدا عدالت کرے گا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی حکم کو کوٹ کیا، اور اس کے بعد 20ویں آیت کی طرف دوبارہ سے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ پرانے عہد نامے میں پہلے سے ہی حکم ہے اور اس کی سزا بھی موت لکھی گئی ہے، یسوع نے اس کو دوبارہ سے دہرایا ہے، اور خدا کی بادشاہی کی جو راست بازی ہے اس حوالے سے اس کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اس گناہ سے بچا جائے۔ یہ گناہ خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، یہ گناہ فیملیز کو، رشتوں کو، بچوں کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں اس کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ شادی شدہ مرد کی طرف ہے۔ اب اگر امثال کی کتاب کا 6واں باب دیکھیں تو اس میں بھی مرد کو جو شادی شدہ ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح 10 احکام کا جو آخری حکم ہے اس میں دیکھیں تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، یعنی شادی شدہ لوگوں زیادہ فوکسڈ نظر آتے ہیں، ٹارگٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن نئے عہد نامے میں ہمیں یہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ہر کوئی مرد یا عورت، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، جوان لڑکا یا جوان لڑکی، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، اور اس کو اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ گناہ جو ہیں یہ اس کے سزا کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اس گناہ کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہم سیکھتے ہیں۔ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 6 باب میں لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہگار ہے۔ یعنی یہ جو گناہ ہے زنا کاری کا، یہ نہ صرف ہماری روح کو نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے بدن کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ اور آج کا جو حوالہ ہے یہ اس کا بھی مضمون جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے سیفٹی آف دی باڈی اینڈ سول، دونوں کو محفوظ رکھنا، جسم اور روح دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس پارٹیکولر جو ایک 10 کمانڈمنٹس میں سے ایک حکم 7واں حکم ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ تم سن چکے ہو
अगलों से कहा गया था जिना न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। यहां पर जो जिना का जो गुनाह का सबब है उसको सबके सामने रखा गया है। दिल, सोच, हमारा देखने का अंदाज, हमारी सोचें, ये इस गुनाह का सबब है। और याकूब के खत के पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश शामिला होकर गुनाह को जन्मती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करती है। यानी जो ख्वाहिश है वो सबब है गुनाह का। बुरी ख्वाहिश, बुरी नजर के साथ देखना, बुरी ख्वाहिश अपने दिल में लाना, किसी औरत के बारे में या औरत का किसी मर्द के बारे में बुरी सोच अपने दिल में लाना, ये गुनाह का आगाज है, गुनाह की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए इस वजह को, इस सबब को खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये खूबसूरत हुक्म दिया है। मैं इसे खूबसूरत इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ ये इत्तेफाक हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे, गैर मसीही दोस्त ने मुझे कहा, इसी खास हुक्म के बारे में उसने मेरे साथ बात की। उसने कहा कि ये क्या बात, किसी की तरफ देखने से भी जिना हो गई, ये तो अजीब सही हुक्म है। मैंने उसे कहा कि अगर आप अपनी बहन के साथ बाजार में जा रहे हो और आपकी बहन की तरफ कोई बुरी नजर से देखे तो फिर आपका रद्द-ए-अमल या आपकी सोच क्या होगी? फर्ज करें आप उससे लड़ भी नहीं सकते, तो फिर आप क्या सोच रहे होंगे? तो मुझे गुस्सा तो आएगा। तो मैंने कहा यही इस हुक्म की खूबसूरती है। जिसको आप बुरा समझ रहे हैं, जिसको आप तनकीद के लिए मुझे सुना रहे हैं कि ये हुक्म क्या है जी, कि ये देखा भी तो जिना कर चुका, मैंने कहा यही खूबसूरती है खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की। यीशु ने उस जड़ को पकड़ा है जो गुनाह का सबब है। यीशु ने दूसरों के एहसासात की कदर की है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है आजकल बहुत से ममालिक में तो ये बल्कि ऑफेंस है, जुर्म है ये, और आप किसी को इस तरह से देख नहीं सकते। अगर कोई शिकायत कोई फीमेल कर दे कि जी मुझे इसने गलत अंदाज से देखा है, तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ये मैं ऑफेंड हुई हूं, मुझे बुरी नजर से देखा गया है। सेक्सुअल हैरासमेंट जो है, जिनसी तौर पर किसी तरफ बुरी नजर से देखना और उसको डराना, उसको खौफ में मुब्तला करना, या फिर जिनसी तशद्दुद आज के दौर में जिस तरह से बढ़ रहा है, आज के दौर में जो केसेस रिपोर्ट होते हैं बहुत से नहीं होते, उसके तनाज़ुर में जब हम इस हुक्म को देखते हैं तो ये हुक्म गुनाह के खात्मे की तरफ एक खूबसूरत इशारा है कि इंसान की सोचें गुनाह पैदा करती हैं, इंसान की सोचें इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती हैं, गुनाह में डाल देती हैं, गिरा देती हैं, जो उसके लिए मौत का सबब है। और इसीलिए हुक्म जो है ये इंसानी जान को, और खुदावंद यीशु मसीह ने इससे बचाव के लिए बड़ा ही लगता बड़ा सख्त है, लेकिन अब अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसको खुदावंद यीशु मसीह की जो हार्ट है, जो उसका दिल है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी मर्जी है, उसको पेश करता है। इससे पहले हम दो कंपैरिजन देखेंगे दो कैरेक्टर्स के, डेविड और जोसेफ, दाऊद और यूसुफ का किरदार। ये दोनों किरदार जो हैं आज के हवाले के लिए खूबसूरत मिसाल है। तवारीख की दूसरी किताब और उसका 11वां और 12वां बाब, उसमें हमें दाऊद की जिंदगी के बारे में पता चलता है जब उसने गुनाह किया। दाऊद जंगों के दिन थे, उसकी फौजें लड़ने के लिए गई हैं, और खुद दाऊद साहब जो हैं वो बादशाह होते हुए छत पर हैं ताकि तवारीख की किताब में वो देख सकें कि किस तरह से इर्द गिर्द के हालात हैं। और वहां पर उसने तवारीख की किताब और उसका
11वां बाब, ये माफ कीजिएगा, तवारीख की पहली किताब और उसका 11वां बाब है, जिसमें हमें, ये हवाला मुझसे गलत हो गया है, इसमें खास तौर पर जो दाऊद है उसके पास ये एक बड़ा ही अहम मौका था जब अपने आप को गुनाह से बचा सकता है। दाऊद छत पर टहल रहा है और उसने बत्सबा को, हित्ती उरिया की बीवी को देखा कि वो नहा रही। उसने उसे अपने पास महल में बुला लिया और जिना की। उसके बाद उस गुनाह को छुपाने के लिए उसे उसके शोहर हित्ती उरिया को कत्ल करना पड़ा। और उसके बाद नातन नबी ने आकर उसके गुनाह को उस पर जाहिर किया। यहां पर हमें दूसरी तरफ यूसुफ की मिसाल मिलती है। दाऊद बादशाह है और यूसुफ गुलाम है। उसके आका की बीवी ने उसे जिना के लिए उभारने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को गुनाह से बचाया। और जब वो पैदाइश की किताब के 39वें बाब में उस गुनाह से बचने की कोशिश करता है तो गुलामी की हालत में है, सारे आका के जो अशिया है, माल है, उसका मुख्तार है, और अपनी उसकी बीवी जो है उसको, जब जिसने उसे गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की, उससे अपने आप को बचाते हुए अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल लिया और कैद में चला गया। उसका दाऊद के अख्तियार ने उसे गुनाह पर आमादा किया। यूसुफ की परेशानी हमें गुनाह पर गालिब आते हुए नजर आती है कि उसने दुख में से गुजरा लेकिन गुनाह नहीं किया। जिनाकारी का जो गुनाह था उस पर वो गालिब आया, अगरचे उसके लिए उसने दुख उठाया, लेकिन दाऊद जिसके पास अख्तियार था उसने अपने आप को गुनाह में डाला। और अगर हम उसके इस गुनाह को देखें तो उसमें 3 हुक्म उसने तोड़ दिए। अपने पड़ोसी की बीवी का लालच, तो खून ना करना, उसने कत्ल कर दिया, उसके शौहर को करवा दिया, तो जिना ना करना। यहां पर एक अहम बात यह है जो दाऊद को गुनाह से बचा सकती थी, जो जोसेफ ने की। दाऊद जो है वो गुनाह के वक्त जब उसकी आंखों ने, उसकी निगाहों ने बत्सबा को देखा तो वो वहां पर ठहरा रहा। यूसुफ वहां से भाग गया। सिचुएशंस जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हालात वाकयात हैं उसमें हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जो आजमाइश है उसको हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उस वक्त हमारा रद्द-ए-अमल क्या है, इमीडिएट रिएक्शन जो है वो क्या है। और यूसुफ के मामले में यही एक ऑप्शन जो उसने इस्तेमाल की कि वो गुनाह की जगह से अपने आप को दूर ले गया। और दाऊद जो है वो गुनाह की जगह पर खड़ा रहा और उसने अपने आप को गुनाह में गिरा लिया। बहुत दफा हम खुद अपने आप को गुनाह की हालत में रखना चाहते हैं। बहुत दफा हम खुद अपने आप को गुनाह में डालना चाहते हैं या डाले रखते हैं। अपने आप को जब हम बचा सकते हैं, गुनाह से निकल सकते हैं, आजमाइश पर गालिब आ सकते हैं, हम अपने आप को आजमाइश में डाले रखते हैं। और यहां पर यीशु ने भी इसी तरह से जिक्र किया है कि अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक, उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे। और यहां पर ठोकर खिलाने के लिए जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है कि किसी के रास्ते में कोई पत्थर रखना जिससे वो ठोकर खाकर गिर पड़े, यानी वो चीज जो हमारे गिराने का बायस हो उसको दूर करना। इस यीशु के इस हुक्म का मफहूम ये है कि वो चीज जो हमारी जिंदगी में गुनाह को लाने का बायस बने, उस चीज को, उस पत्थर को अपनी जिंदगी से निकालना।
मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखें ये तो जी नहीं ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ तो फिर ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ हैं, ऐसी बात नहीं है कि यसू ने एडा सख्त हुक्म दे दिता है तो हम साढ़े ਅਸੀਂ ਤੇ इंसान आ जी, इंसान को तो गलती हो जाती तो फिर ऐसे करिए फिर ਅੱਖ ही ਕੱਢ लइए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में उस आजमाइश लाने वाले मौके को, अपनी जिंदगी में उस आजमाइश को जो हमें गुनाह में गिरा सकती है उसको अपनी जिंदगी से दूर करना, चाहे वो दोस्तों की सूरत में हो, चाहे वो हालात की सूरत में हो, वाकयात की सूरत में हो, या हमारे इर्द गिर्द के माहौल की सूरत में हो। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक का जिक्र किया गया है कि वो ऐसी चीज जो हमारी राह में रुकावट बने और हमें गिराए, उससे बचने के लिए कहा गया है। गुनाह एक बीमारी की तरह है, ये कैंसर की तरह एक बीमारी जिसका जितनी जल्दी इलाज कर लिया जाए मुमकिन उतना दुरुस्त है। जैसे जैसे बीमारी लंबी होती है उसका असर जो है वो बढ़ता जाता है। अक्सर जब मेरे को बताता है कि ये मसला है, जल्दी ना डॉक्टर को जाओ, देर नहीं करनी, जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होगा। यहाँ पे मेडिकल के शोबे से मुझसे लोग हैं वो जानते हैं कि बीमारी को जितना प्रोलॉन्ग करेंगे वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी। गुनाह भी इसी तरह से है, गुनाह भी हमारे जिस्म को, हमारी रूह को उसी तरह से नुकसान पहुंचाता है। एंड इट नीड्स ड्रास्टिक सर्जरी। जिस तरह से बीमारी के लिए सर्जरी की या ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो इसको सर्जरी की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि वो हमारे बॉडी ऑर्गन में से कोई प्रॉब्लम है, इसको निकाल दें, ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कर रही है, इसको निकाल दें ताकि हमारा जिस्म जो है वो ठीक रहे। इसी तरह से हमारे जिस्म में वो अज़ा जो गुनाह की तरफ हमें लेकर जाते हैं उनके इलाज की जरूरत है, जिसमें आंख और हाथ का जिक्र है। यानी ये दो ऐसे अज़ा हैं जो गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, जो गुनाह करने में हमारे मददगार हैं, गुनाह करते वक्त हमारे साथ होते हैं। और हमें खासतौर पर रोमियो के खत के 6 बाब में इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मिलती है। रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अपने आज़ाद नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने आज़ाद रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। यानी अपने आज़ाद रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करने की जरूरत है। हमारी बॉडी में ऐसे तमाम अज़ा जो हमें गुनाह की तरफ माइल करते हैं, हमें उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, उन पर कंट्रोल की जरूरत है, उन ख्वाहिशों पर, उन इरादों पर, उन ऐसी चीजों पर जो हमें गुनाह में गिरा सकती हैं, उनको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारा ये ना हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हारे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जो है वो जहन्नम में ना जाए। खुदावंद यीशु मसीह इंसान को हलाकत से बचाने के लिए इस दुनिया में आए। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद इंसान को मौत से निकालना है, अबदी हलाकत से बचाना है। और अपनी हलाकत से बचाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने उन सोचों को, अपने जज्बात को, अपने इरादों को जो गुनाह की तरफ माइल करते हैं उन्हें भी दुरुस्त करें। सिर्फ ज़ाहरी तौर पर जो रास्तबाजी है, ज़ाहरी तौर पर दिखाने से काम नहीं बनेगा कि अगर हमने कुछ किया नहीं गलत ज़ाहरी तौर पर तो इसका मतलब है हम पाक हैं, हम ठीक हैं। अगर हमारा दिल पाक नहीं है तो फिर हम दुरुस्त नहीं हैं। जब दाऊद ने गुनाह किया और नातन नबी इसके पास आया और नातन नबी ने उसको आके बताया कि तू ही वो शख्स है जिसने ये गुनाह किया है, तूने हित्ती ऊरिया को कत्ल करवाया, उसकी बीवी तूने ले ली है, और उसको नातन ने सजा सुनाई खुदा की तरफ से जो दी गई। तो ज़बूर 51 में उसकी तौबा है, और जब उसको नातन नबी ने आगाह किया कि तेरा ये गुनाह है तो उसने कोई हिल हुज्जत नहीं की, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। बादशाह था, अख्तियार में था, वो नातन को भी कत्ल करवा सकता था, नातन नबी को। तो वो गुनाह जो उसने छुपाया हुआ है, उसने लोगों के सामने
उसको कहा तू वो शख्स है जिसने ये गुनाह किया है। तो बादशाह इख्तियार में था, चाहता तो कहता नातन नबी ने फारग करो जिस तरह यूरिया को किया है। उसके अल्फाज क्या थे? मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। उसके अल्फाज ये थे, मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। उसने इकरार किया अपने गुनाह का, उस गुनाह को जिसको लोग जानते नहीं थे या जब जानते थे वो बोल नहीं सकते थे। उसके दरबार में से जो लोग इस गुनाह से वाकिफ थे वो ये नहीं कह सकते थे कि बादशाह आपने गुनाह किया है। लेकिन नातन नबी ने जब उसके गुनाह को उस पर आगाह किया तो उसने फौरन इकरार किया कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। और 51 में ज़बूर में 4 आयत में लिखा है, मैंने इस वक्त तेरा ही गुनाह किया है। अगर हमने जिस्मानी तौर पर और ज़ाहरी तौर पर जिनाकारी नहीं भी की, लेकिन अगर हमने बुरी सोच की तरह बुरी नजर से किसी को देखा है तो हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और दाऊद ने कहा मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया और वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। बुरी नजर से किसी को देखना खुदावंद की नजर में बुरा है और उसने उसका इकरार किया। मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में ये गुनाह है तो हमें ये इकरार करने की जरूरत है। लोग नहीं जानते कि हम किसको बुरी नजर से देखते हैं या किसको बुरी नजर से देखा है, लेकिन यीशु ने कहा कि जिस किसी ने किसी औरत को बुरी नजर से देखा वो उसके साथ जिना कर चुका। हमने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। खुदावंद की नजर में जो बुरा है वो हमने किया है। हमें खुदावंद से माफी की जरूरत है। और उसी तरह फिर उसने दाऊद ने जब अपने गुनाह का इकरार किया तो उसने उस वक्त भी अपनी पाकीज़गी के बारे में, मेरे ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, अपने दिल की पाकीज़गी के लिए दुआ की, क्योंकि उसका दिल नापाक था। जब हम बुरी नजर से किसी को देखते हैं हम जिना कर चुके और हमारा दिल जो है वो नापाक है। और दाऊद ने फिर दुआ की, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में ये गुनाह है तो हमें खुदावंद के पास आने की जरूरत है और उससे दुआ करने की जरूरत है। इकरार की जरूरत है कि मैंने तेरा गुनाह किया है, उससे माफी मांगने की जरूरत है। ये हवाला पढ़ने में बड़ा सख्त लगता है, लेकिन ये हवाला हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम न सिर्फ हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए है, दूसरों की जिंदगियों को बचाने के लिए है। जब दाऊद ने गुनाह किया तो दाऊद के गुनाह के सबब से बहुत सी और जिंदगियां अफेक्ट हुई। एक यूरिया कत्ल हो गया, वो बच्चा जो पैदा हुआ वो खुदा की सजा के बायस मर गया। बत्सबा को अपने शौहर की मौत का दुख देखना पड़ा। हमारे गुनाह बाज़ औक़ात दूसरों के लिए तकलीफ का बायस होते हैं। हमारे गुनाह दूसरों के खानदानों में तबाही का बायस हो सकते हैं। इसलिए इस गुनाह से हमें बचने के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी को बुरी नज़र से देखते हैं तो ये भी खुदावंद की नज़र में एक गुनाह है और हमें हलाकत की तरफ लेकर जाता है। इसलिए इस गुनाह से बचने के लिए खुदावंद से मदद मांगने की ज़रूरत है, खुदावंद से रहनुमाई मांगने की ज़रूरत है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीले से पूरे इंसान को हलाकत से निकालने का मंसूबा तकमील को पहुंचाया। खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं। खुदावंद, तू हमारी मदद कर। खुदा कद्दूस, तू रहनुमाई कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आजमाइशों पर गालिब आने वाले बन सके। खुदावंद, तू हमारी मदद कर। खुदावंद, तेरे पाक रूह की मदद मांगते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक को छू। खुदावंद, हम में से हर एक के साथ हो। खुदावंद, हमें इस गुनाह से बचा जिसमें हम किसी की तरफ बुरी नजर से देखें।
खुदावंद तेरे पाक रूह की मदद मांगते हैं ताकि हम इस गुनाह पर गालिब आ सकें और अपने दिल को पाकीज़गी की तरफ ला सकें। खुदावंद तू हमारे दिलों को जानता है, अगर हमने ये गुनाह किया है तो खुदावंद तू हमें माफ़ कर और हमारे अंदर पाक दिल पैदा कर, ताकि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी से तेरी गवाही दे सकें, ताकि हम अपने आज़ाद रास्तबाजी के लिए तेरे हवाले कर सकें, यीशु के नाम से आमीन। एक और अनाउंसमेंट है कि जो ख़वातीन की इबादत है वो रोज़ों के सबब से तीसरे जुमे को होगी और ये 17 फरवरी को है, यानी ये जो जुमा आ रहा है इस हफ्ते में 17 फरवरी को 5 बजे इबादत होगी। ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ज़रूर इस इबादत में शामिल हों। मैं जानता हूँ कि ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ घर में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जहाँ हम सारे कामों के लिए वक्त निकालते हैं, इबादत के लिए, खुदावंद के लिए ज़रूर वक्त निकालें। इससे हम रफ़ाकत में भी बढ़ेंगे, ईमान में भी बढ़ेंगे और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस होंगे। इसलिए जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि अपनी सारी मसरूफियात जिनको हम पूरा करते हैं, सारी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, उनमें से जो खुदावंद के लिए वक्त है वो भी ज़रूर निकालें। ये 17 फरवरी यानी इस जुमे को शाम 5 बजे इबादत होगी। इस वक्त हम हदिये के लिए गीत गाएंगे, गीत नंबर 220 220, बेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। गीत नंबर 220 220 और इसी के साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। Bye.
हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदा हम तेरी रहनुमाई मांगते हैं, तेरी मदद आज इस हफ्ते के लिए मांगते हैं, और ख़ास तौर पर ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, इनके लिए दुआ करते हैं खुदा तुझे कबूल कर, तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। खुदा हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनवी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे, ईमान की मजबूती भी बख्श दे, और खुदा ये तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल जाहिर करें। और खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरी दी हुई बरकतों को खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो बेरोज़गार हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन्हें रोज़गार मिले, और जो लोग मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, यीशु के नाम से उनकी मुआशी मुश्किलात भी जाती रहें, उन्हें खुशहाली मिले। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया को तू गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, कौमी सतह पर खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की वसअत के लिए इस्तेमाल कर, और हमारे साथ और खुदावंद हमारी हिफाजत कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। नाज़रीन, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने तो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागूं और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका कासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद हम इस होस्तिया की दुआ करते हैं और शीरे की दुआ करते हैं, खुदावंद इनकी तकदीस कर, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनको पाक ठहरा, ताकि इस शीरे को खाने, इस शीरे को पीने और इस होस्तिया को खाने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हम अपनी जिंदगी से कर सकें और यहाँ से तेरी हुजूरी से एक नई जिंदगी के साथ वापस लौट सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी में यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदा उनकी मेज पर आने की दावत देता हूँ।
यीशु मसीह ने कहा फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, इनकी करेगा खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। कोई भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुछ गया वो तेरे लिए, कुछ गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये संसार प्रेम की करेगा, बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। यीशु ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी
कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। अदृश्य जीवन हरि को तुझसे पाते मिले। यही हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु ने कहा मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। अगर कोई यहाँ पर नहीं आ सका आगे शायरवानी को लेने के लिए तो वो हमें बताए ताकि उस तक पहुंचा जाए। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन पर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता है मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजलो करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत गटे हुए आज़ा हैं और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक कमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूहुल कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाबाद होती है, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदाबंद खुदा, आसमानी बादशाह, कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते और तुझे मुबारक कहते, तेरी प्रस्तश करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदाबंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे,
तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ए मसीह तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिम खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाके रूपे कर तुझे होते तेरे लिए जीऊंगा। पाके रूपे कर तुझे होते तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।